एडाप्टेशंस करना था हमें, जहां तक मुझे याद है। गुड इवनिंग कृतिका। एडाप्टेशन करना था। हाँ, डेफिनेशन लिखा दिया था एडाप्टेशन का हमने। एडाप्टेशन का डेफिनेशन नहीं लिखवाया था ना? क्या बोल रहे हो? एडाप्टेशन का डेफिनेशन लिखवाया था। एनी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और बिहेवियरल चेंज इन ऑर्गेनिज्म which helps that organism to survive and reproduce under particular set of environmental condition, and in course of evolution these changes are generally genetically fixed, that is stably pass on from one generation to another. चलिए, ये हो चुका है। हाँ, एग्जाम्पल। ओके, ना पहला एग्जाम्पल लिखिए। इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट in North American desert, where there is no external source of water, where there is no external source of water, kangaroo rat kangaroo rat meets its water requirement. Kangaroo rat meet its water requirement through through internal oxidation of fat, through internal oxidation of fat. during this process during this process as a byproduct as a byproduct water is produced. water is produced, ठीक है। प्लस इसमें और क्या होता है, in order to minimize the loss of water from the body they have mechanism to concentrate their urine. तो जब ये यूरिन पास करेंगे तो इनके बॉडी से मिनिमम अमाउंट में वाटर लॉस होगा। तो राइट डाउन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। in order to in order to minimize the in order to minimize the loss of water from body, in order to minimize the loss of water from body, they have mechanism to concentrate their urine. ठीक है। सेकेंड लिखिए, सेकेंड एग्जांपल लिखिए। इन डेजर्ट प्लांट्स, that is xerophytes, in desert plant, that is xerophytes, there are various adaptations. There are various adaptations which helps plants to survive and almost all the adaptations and almost all the adaptations are almost all the adaptations are in order to minimize in order to minimize loss of water, loss of water.
ठीक है, पहला लिखिए heavy deposition of cuticle on leaf. Heavy deposition, cuticle is a waxy substance, ठीक, heavy deposition of cuticle on leaf. Second, sunken stomata. अगर आपको याद होगा तो स्टोमेटा ऐसे ग्रूव में प्रेजेंट होगा यहाँ पे, संकन स्टोमेटा, ठीक है। थर्ड, दे फॉलो कैम पाथवे, दे फॉलो कैम पाथवे। अगर आपको कैम पाथवे थोड़ा बहुत याद होगा फोटोसिंथेसिस में, मैंने आपको बताया था क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे स्टोमेटा जो होता है इट ओपन्स एट नाइट, दिन में टेम्परेचर हाई होने के कारण, ठीक है, वो स्टोमेटा अपना ओपन नहीं करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, फोर्थ, लीफ इज हाईली रिड्यूस्ड, लीफ इज हाईली reduced and stem becomes green photosynthetic. Leaf is highly reduced and the stem becomes green photosynthetic. It can be phylloclad or cladode, whatever. ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन एक्वेटिक प्लांट, थर्ड लिखिए, इन aquatic plants like hydrophytes, various adaptations are present. Hydrophytes, various adaptations are present. First, large amount of erenchyma is present. Large amount of erenchyma. अगर आपको erenchyma याद होगा तो it is parenchyma with intercellular spaces. Large amount of erenchyma is present, which helps in maintaining buoyancy. Large amount of erenchyma is present, which helps in maintaining buoyancy. Second लिखिए, root is poorly developed. Root and stomata is poorly developed. Root and stomata is poorly developed. क्योंकि वाटर लॉस का प्रॉब्लम नहीं है और वाटर एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोफाइट्स हैं। रूट एंड स्टोमेटा इज पुअरली डेवलप्ड, ठीक है, लिख लिया ना। नेक्स्ट लिखिए, जब आप कोल्डर क्लाइमेट में जाएंगे, वहां पे जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको जो एक्सटर्नलीज होते हैं, एक्सटर्नलीज मींस ईयर हो गया, लिम्स हो गया, वो स्मॉल साइज के होते हैं, एंड दिस इज रिफर्ड एज एलेंस रूल। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, those animals which are present in colder area
or colder climate have small externalities. Colder climate have small externalities in order to in order to minimize the loss of heat. It is known as Allen's rule. It is known as Allen's rule. In order to minimize the heat, it is known as Allen's rule. ठीक है. सील जो होता है कोल्डर क्लाइमेट में मिलता है, तो वहां पे आप देखेंगे कि सील के नीचे, स्किन के नीचे देयर इज अ थिक लेयर ऑफ फैट. ठीक है, एंड दैट थिक लेयर ऑफ फैट इज रिफर्ड एज ब्लबर. ठीक है, ये किस तरह काम करता है? इट एक्ट्स एज इंसुलेटर. राइट ऑन. In animals such as seal, SEAL, which are found in colder climate, in animals such as seal, which are found in colder climate, just below the skin, thick layer of fat is present. Thick layer of fat is present, known as blubber. Known as blubber. BLUBBER. Which acts as insulator. Which acts as insulator. Thus prevents loss of heat from body. Thus prevent loss of heat from body. ठीक है ना. आप जब कभी चढ़ाई चढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप वैष्णो देवी जा रहे हैं या किसी पहाड़ पे क्लाइंब कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ता है तो क्या होता है कि एयर का प्रेशर कम होता जाता है, तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा. तो धीरे धीरे क्या होता है कि नौजिया होना शुरू हो जाएगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, थकान होना शुरू हो जाएगा. ये सारे सिम्टम, नौजिया, फटीग एंड इंक्रीज इन हार्ट पल्पिटेशन, ये सारा कुछ जो है इसको क्यूमुलेटिवली हम लोग कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस. लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है कि आपका बॉडी अडॉप्ट कर लेता है. धीरे समय के साथ जैसे आप चढ़ते जाएंगे तो आपका बॉडी अडॉप्ट कर लेता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका बॉडी जो है वो आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है. पहला काम करता है. दूसरा काम ये करता है कि आरबीसी से ऑक्सीजन के बाइंडिंग एफिनिटी को डिक्रीज कर देता है. मतलब क्या हुआ? जैसे एक ऑक्सीजन से बाइंड किया, फिर इमीडिएटली इसको रिलीज करके फिर दूसरे से बाइंड किया, तो क्या होगा? बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई फास्ट हो जाएगा, तो यू विल बी एबल टू ओवरकम एल्टीट्यूड सिकनेस. राइट. When we climb a hill, there is nausea, fatigue, and increase in heart palpitation, increase in palpitation,
which together referred as altitude sickness, which together referred as altitude sickness. Gradually, body overcomes this problem. Gradually, body overcome this problem by increasing production of RBC, by increasing production of RBC, and by decreasing binding affinity of RBC, by decreasing binding affinity of RBC with ऑक्सीजन. ठीक है. जब आप पोलर एरिया में जाएंगे तो वहां टेम्परेचर सब जीरो होता है पोलर एरिया में, बट वहां पे फिशेस प्रेजेंट होते हैं. उस सब जीरो टेम्परेचर पे भी उनका जो सेलुलर कंटेंट है वो फ्रीज नहीं करता. धक धक करना, पल्पिटेशन, धड़कन. ठीक है. तो आप जब पोलर एरिया में जाएंगे तो वहां सब जीरो टेम्परेचर होता है, -30 -40 तक होता है. लेकिन वहां पे जो मछलियां होती है उनका जो सेलुलर कंटेंट होता है वो जमता नहीं है. क्यों नहीं जमता है? बिकॉज दे हैव एंटी फ्रीज प्रोटीन इन देयर बॉडी. आपने पढ़ा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट सॉल्यूशन वाले चैप्टर में. वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी काम करता है. राइट डाउन. इन पोलर एरिया where temperature is sub-zero, fishes are able to survive because of presence of anti-freeze protein, in their body, which prevents freezing of cellular content, ठीक है ना. नेक्स्ट, जब आप समुद्र के अंदर जाएंगे, डीप इनसाइड द ओशन, प्रेशर इज 100 टाइम्स हायर देन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ऐसे अगर आप डुबकी मारेंगे ना, बहुत अंदर जाएंगे तो फट जाएंगे आप, इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है. बट ऑर्गन्स आर एबल टू सर्वाइव देयर. हाउ दे आर एबल टू सर्वाइव देयर? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरियस बायोकेमिकल अडेप्टेशंस. ठीक है. राइट डाउन. deep inside the ocean, where atmospheric pressure is 100 times higher than normal atmospheric pressure, 100 times higher than normal atmospheric pressure, organisms are able to survive
because of the presence of organisms are able to survive because of the presence of various biochemical adaptations. Various biochemical adaptations. ठीक है ना? नेक्स्ट ओके अगला जो डेजर्ट लिजार्ड होता है वो अपना बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है बाय बिहेवियरल मीन ठीक है जब उसका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है इट विल बास्क इन सन धूप को सेकेगा आराम से धूप में घूमेगा अपने बॉडी में हीट एब्सॉर्ब करेगा एंड व्हेन इट्स बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस इट विल रिटर्न टू इट्स बरो जहां वो होल में रहता है वहां रिटर्न कर जाएगा राइट डेजर्ट लिजार्ड desert lizard maintains its body temperature desert lizard maintains its body temperature by behavioral means when its body temperature falls below normal when its body temperature falls below normal it basks in sun when its body temperature falls below normal it basks in sun bask धूप सेकना it basks in sun and when its body temperature increases and when its body temperature increases it returns to its burrow it returns to its burrow ठीक है now next heading is population तो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे खत्म हो गया हम लोग पॉपुलेशन पे आ रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग इज पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन होता क्या है तो पॉपुलेशन के लिए हम लोग कहते हैं इट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज which are present in a particular area where they can interbreed freely एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल है जो पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है और आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट पॉपुलेशन अगर हम इस डेफिनेशन को माने ठीक है पॉपुलेशन का तो इसके हिसाब से तो सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ही पॉपुलेशन बना रहा है तो फ्री इंटरब्रीडिंग की बात कर रहा है लेकिन फॉर द इकोलॉजिकल पर्पसेस दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच रिप्रोड्यूसेस asexually also together constitute population for example बैक्टीरिया है इन ए कल्चर मीडियम बैक्टीरिया इन ए कल्चर मीडियम जहां पे आप उसको ग्रो कर रहे हो दैट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट पॉपुलेशन ओके थर्ड वन पॉपुलेशन it is group it is group of closely related it is group of closely related individuals group of closely related individuals of a species present in a particular area present in a particular area where they can interbreed freely where they can interbreed freely and produce fertile offspring and produce fertile offspring next word लिखिए for ecological studies for ecological studies those individuals for ecological studies those individuals which reproduces asexually which reproduces asexually
also together constitute also together constitute a population. For example, for example, bacteria in a culture medium. For example, bacteria in a culture medium. ठीक है ना? अब देखो, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, जैसे मान लो मैं जहां पे कभी रूम में क्लास ले रहा हूं, यहाँ पे आप लोग भी बैठो, सपोज करो इस रूम के अंदर, तो हो सकता है कि यहाँ जो टेम्परेचर है वो मेरे लिए ठंडा हो, आपके लिए गर्म हो, किसी के लिए नॉर्मल हो। तो टेम्परेचर इंडिविजुअल फील करता है, लेकिन जब हम फोर्सेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं, तो फोर्सेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है वो हमेशा पॉपुलेशन के लेवल पे एक्ट करता है। ठीक है, जो फोर्सेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो हमेशा किस पे एक्ट करेगा? पॉपुलेशन के लेवल पे। क्यों एक्ट करता है? इन ऑर्डर टू इवॉल्व डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट। मान लीजिए एक पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल हैं, अब उसमें से 10 को नेचुरल सिलेक्शन ने सेलेक्ट किया, तो उन 10 में एक पर्टिकुलर जीन कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उनको वो प्रमोट कर रहा है। दैट मीन्स दिस पॉपुलेशन इकोलॉजी कनेक्ट्स इकोलॉजी विथ पॉपुलेशन जेनेटिक्स, क्योंकि डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट को प्रमोट कर रहा है, एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, क्योंकि वो फिर ग्रुप इवॉल्व करेगा आगे। लिखिए पॉइंट, नहीं तो दोबारा समझाऊंगा, लिखिए इस पॉइंट को पहले। फोर्सेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, forces of natural selection always operates at the level of forces of natural selection always operates at the level of population, always operates at the level of population in order to evolve desirable combination of trait, in order to evolve desirable combination of trait. So population ecology connects ecology with population genetics and organic evolution. Population genetics and organic evolution. Population genetics and organic evolution. ठीक है ना? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। ये पॉइंट समझ में आया सबको जो मैंने लिखवाया? ये पॉइंट क्लियर है सबको जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखवाया? हो भी कि नहीं भाई? नो सर, तो पूछेंगे तभी बताओगे। देखो, मैंने क्या कहा आपको कि मैंने आपको ये कहा कि जो नेचुरल सिलेक्शन का फोर्स है वो पॉपुलेशन के लेवल पे एक्ट करता है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से।
तो पॉपुलेशन के लेवल पे ये एक्ट कर रहा है। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या कुछ को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो जितने भी जैसे मान लो 100 इंडिविजुअल है, उसमें मान लो 10 को उसने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो जो 10 हैं उसमें एक पर्टिकुलर जीन कॉम्बिनेशन है, मतलब उस जीन कॉम्बिनेशन को प्रमोट कर रहा है वो। तो वो जीन कॉम्बिनेशन जो एलिक कॉम्बिनेशन है दैट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो यही कहता है, और वही फिर आगे जाके इवॉल्व करेगा, उसको सेलेक्ट कर रहा है तो उसको प्रमोट करेगा। तो यही कहता है कि जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है इट कनेक्ट्स इकोलॉजी विथ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट हेडिंग इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, देखो कि एट्रीब्यूट्स मीन कैरेक्टर्स। पॉपुलेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इंसान का जन्म होता है, मौत हो जाता है, इंसान मर्द होता है, औरत होता है, या ट्रांसजेंडर वॉटेवर, ठीक है। फिर छोटा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है, सेक्स रेशियो होता है, एज पिरामिड होता है एंड पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है बर्थ रेट, सेकेंड डेथ रेट, थर्ड सेक्स रेशियो, फोर्थ एज पिरामिड एंड फिफ्थ पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट को हम लोग पर कैपिटा बर्थ भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज पर कैपिटा बर्थ। मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि एक पॉपुलेशन में एक साल में 10 बर्थ हुआ, ठीक है, और उसका साइज जो था पॉपुलेशन का इनिशियल 100 था। तो ये बर्थ रेट हो गया नंबर ऑफ बर्थ अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन साइज। ये कितना होगा? ये इससे कट गया, दैट इज 0.1। दिस इज पर कैपिटा बर्थ। थर्ड हम बर्थ रेट। It is also referred as it is also referred as per capita birth. It is also referred as per capita birth. It is change in numbers. It is change in number with respect to members of population. It is change in number with respect to member of population. That is, it is ratio between. That is, it is ratio between number of births it is ratio between number of birth and initial population size. Number of birth and initial population size in given time period. In given time period. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए डेथ रेट।
It is per capita death. It is per capita death. It is per capita death. That is ratio between. That is a ratio between number of death and initial population size. Number of death and initial population size in given time period. In given time period. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए सेक्स रेशियो. नेक्स्ट इज सेक्स रेशियो. तो सेक्स रेशियो क्या होता है? अगर आप देखेंगे कोई भी पॉपुलेशन, उसमें मेल और फीमेल दोनों है. इट इज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन ए पॉपुलेशन इज रिफर्ड एज सेक्स रेशियो. राइट डाउन सेक्स रेशियो. इट इज number of female. It is number of female per 1000 male. It is number of female per 1000 male in a population. Number of female per 1000 male in a population. ठीक है. क्लियर ना. नेक्स्ट फोर्थ जो एट्रीब्यूट था दैट इज एज पिरामिड. एज पिरामिड. ठीक है. किसी भी अगर पॉपुलेशन को आप देखें, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन को एट अ गिवन टाइम इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ 3 डिफरेंट एज ग्रुप. ठीक है. कौन कौन से एज ग्रुप के इंडिविजुअल होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में? एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव, और तीसरा होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव. ये 3 डिफरेंट एज ग्रुप के इंडिविजुअल होंगे किसी पॉपुलेशन में एट अ गिवन टाइम. ठीक है. इन तीनों एज ग्रुप का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रोडक्टिव एसेट लायबिलिटी, मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है बेटा ये. ठीक है. तो ये 3 एज ग्रुप हैं. ओके. तो इन तीनों एज ग्रुप के इंडिविजुअल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी पॉपुलेशन में, दैट इज रिफर्ड एज एज पिरामिड. Radon, a population at given time, a population at given time consists of a population at given time consists of individuals of 3 different age group, individuals of 3 different age group, that is pre-reproductive, reproductive and post-reproductive. Pre-reproductive, reproductive and post-reproductive. Graphical representation, graphical representation of graphical representation of individuals of these 3 different age group, individuals of these 3 different
age group in a population is known as age pyramid. In a population is known as age pyramid. ठीक है, तो तीन तरह के एज पिरामिड में, there are three different types of age pyramid. First, write down, पहला पॉइंट लिखिए, there are three different types of age pyramid. There are three different types of age pyramid. फर्स्ट लिखिए expanding or triangular age pyramid. Expanding or triangular age pyramid. ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए, इस टाइप के एज पिरामिड में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है, ठीक है, is more than what is present at a reproductive stage. Right on. In such type of age pyramid, number of individual present at pre-reproductive stage, number of individual present at pre-reproductive stage is more than what is present at reproductive stage. तो पीछे सप्लाई ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ही, जैसे इंडिया में है, ठीक है। ओके, इस डायग्राम को बना लीजिए, बन गया। ओके, नेक्स्ट इज स्टेबलाइजिंग और वेल शेप्ड एज पिरामिड। स्टेबलाइजिंग और वेल शेप्ड एज पिरामिड, इसमें क्या होता है कि जितना इंडिविजुअल प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज पे प्रेजेंट है, ठीक है, मोर और लेस उतना ही इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज पे भी है। डन। इन सच टाइप ऑफ एज पिरामिड, number of individual present at pre-reproductive stage is more or less equal to what is present at reproductive stage. More or less equal to what is present at reproductive stage. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग और अनशेप्ड एज पिरामिड। तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, डिक्लाइनिंग है, मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट एट प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज is less than what is present at reproductive stage. ठीक है, this is pre-reproductive, this is reproductive, and this is post-reproductive. Right on. In such type of age pyramid, number of individual present at pre-reproductive stage
number of individual present at pre-reproductive stage is is less than what is present at reproductive stage. ठीक है, जल्द से बना लीजिए. बन गया? बना लिया सबने? Okay. Now, next heading is population density. Last attribute जो है. Population density. Now, जो साइज ऑफ कहीं पे भी अगर जाएं और अगर आप किसी जंगल में गए मान लीजिए और आप वहां पे देख रहे हैं बहुत सारे आपको हिरन दिख रहे हैं, तो आपको उस वहां पे ये इंफॉर्मेशन आप ड्रॉ कर सकते हो कि भैया हिरन लोग के लिए यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो फेवरेबल है, फूड अबंडेंस में अवेलेबल है, प्रेडेशन प्रेशर नहीं है, पैरासाइट्स नहीं है, कंपटीटर्स वहां पे नहीं है. ठीक है, दैट मीन्स साइज ऑफ पॉप. क्या वो हर्षित बिरमानी? नो क्या? क्या नो हर्षित? दिस ऑल. यू कैन नॉट से. अरे भैया, आप कहीं पे आपके मोहल्ले में आप घूम रहे हैं, आपको बहुत सारे कुत्ते दिख रहे हैं, मतलब कुत्तों को कोई खाना तो दे रहा होगा और कोई जानवर उनको परेशान नहीं कर रहा. मतलब उनके लिए वहां पे हैबिटेट सूटेबल है, फूड अवेलेबल है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई उनको मार के नहीं खा रहा है, कोई प्रेडेशन का प्रेशर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है उस पर, कोई पैरासाइट्स नहीं है. ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा स्टेटस ऑफ हैबिटेट के बारे में. आप देख के बोल नहीं सकते? हाँ जी. लिटिल 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 मार लो और सो जाओ. राइट डाउन. राइट डाउन. Size of population, size of population in an area provides information about provides information about status of habitat, food availability, predation, competition, parasite, etc. Parasite, etc. ठीक है. Now, generally जो density है, it is measured in terms of number. That is number of individual of a species present in a particular area at a given time. ठीक है, तो राइट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. पॉपुलेशन डेंसिटी. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Population density is generally population density is generally measured in terms of population density is generally measured in terms of number of individuals of a species, number of individuals of a species present in a particular area, present in a particular area at a given time, present in a particular area at a given time. रिपीट कर दे रहा हूं.
population density is generally measured in terms of number of individual of a species, number of individuals of a species present in a particular area, at a given time, present in a particular area at a given time. जैसे मान लीजिए आप कहीं घूम रहे हैं तो आपको वहां पे 100 कुत्ते दिख गए, तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो 1 किलोमीटर के एरिया में 100 कुत्ते हैं, तो वो उनका पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। ठीक है, क्लियर पॉइंट ना। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि नंबर हर जगह सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता और हर जगह नंबर काउंट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं कि नंबर ऑलवेज डू नॉट प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड इट इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल टू काउंट द एग्जैक्ट नंबर, सो अदर पैरामीटर्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे कि मान लीजिए एक एरिया में 200-300 तुलसी के पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, और एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, बैनियन ट्री है। तो अगर यहां पे अगर हम नंबर के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो ऑब्वियसली तुलसी के पेड़ का डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि 200 से 300 है, बैनियन तो एक ही है। यहां पे नंबर करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम कैनोपी कवर या बायोमास, कैनोपी कवर मतलब कितना एरिया बैनियन का ट्री कवर कर रहा है, बायोमास या इकोलॉजिकल रोल, ठीक है, विल बी कंसिडर्ड एज अ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो यहां पे तो इनडायरेक्ट मेथड ये हो गया। दूसरा, जब आप तालाब में मछलियों का पॉपुलेशन डेंसिटी डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, मतलब क्या एक एक मछली को निकाल के आप काउंट कीजिएगा, पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक बार जाल फेंके, मान लो 100 मछली पकड़ी गई, तो हम कहते हैं कि ऐसे करके हम ठीक है, ऐसे करके हम 20 बार जाल फेंक सकते हैं, तो मतलब 2000 मछलियां हैं। दिस इज रिलेटिव डेंसिटी। एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता, उसके आसपास ही होगा। ठीक है, दिस इज रिलेटिव डेंसिटी। देन कहीं कहीं एग्जैक्ट नंबर ऐसे का A1 2 3 करके काउंट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडिया में जो टाइगर सेंसस होता है, जो टाइगर पॉपुलेशन हम लोग काउंट करते हैं, तो वहां पे हम लोग पगमार्क, टाइगर का जो पंजे का निशान होता है, और फीकल पैलेट्स को कंसीडर करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, ये नॉन बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, राइट डाउन। number always do not provide number always do not provide correct information about population density, correct information about population density. So other parameters are used, so other parameters are used in order to determine population density. Other parameters are used in order to determine population density. For example, first लिखिए, ecological role played by single banyan tree is more than 200 to 300 small herbaceous plants, is more than 200 to 300 herbaceous plants. So here
canopy cover or biomass, canopy cover or biomass is taken as criteria to determine the population density, is taken as criteria to determine the population density. ठीक है, लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, density of fishes in a pond, density of fishes in a pond is determined through relative density. आपको रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट बताया कि एक बार में इतनी मछलियां पकड़ते हैं तो हम 10 बार ऐसे जाल फेंक सकते हैं, तो इतनी होनी चाहिए, थ्रू रिलेटिव डेंसिटी. नेक्स्ट लिखिए, इन इंडिया for tiger census, non-biological parameters such as pug mark and fecal pellets are used. Non-biological parameters such as pug mark and fecal pellets are used. ठीक है, जनरली हम लोग नंबर पे करते हैं, लेकिन नंबर जहां पे, हाँ, फुटप्रिंट, पग मार्क इज फुटप्रिंट. ठीक है, जनरली हम लोग नंबर पे करते हैं, लेकिन नंबर हमेशा सही इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा, तो हम लोग ये सब पैरामीटर भी यूज करते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ. नेक्स्ट हेडिंग इज पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, दैट विल डू इन नेक्स्ट क्लास, कल.